میں کمی کے بعد پنجاب میں پابندیوں میں نرمی. لاہور، گجرانوالہ، ملتان، فیصل آباد میں تعمیراتی کام کی اجازت. زگ زیگ ٹیکنالوجی پر بھٹے بھی کام کر سکیں گے. سرکاری اور نجی دفاتر کو 100% عملے کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے دی گئی. لاہور، گجرانوالہ، ملتان اور فیصل آباد میں ہیوی ٹریفک پیر سے جمعرات تک داخل ہو سکے گی. دکانیں، مارکیٹیں، شاپنگ مالز 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ برقرار. ریسٹورینٹس کی انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ 10 بجے تک ہوگی. نوٹیفیکیشن جاری. لاہور سمیت فضائی آلودگی میں پنجاب کے سر فہرست شہروں میں 30 ایئر کوالٹی مانیٹرز کی تنصیب. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق لاہور میں فضائی آلودگی کی نگرانی کے لیے مانیٹرز کی تعداد 3 سے 8 ہو گئی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 174 اور کراچی میں 158 ریکارڈ کیا گیا. عالمی سطح پر دلی 429 پارٹیکلیٹ میٹر کے ساتھ فضائی آلودگی میں پہلے نمبر پر رہا. پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کے معاہدے دفتر خارجہ میں ہونے والی تقریب میں دستخط کیے گئے. اس سے پہلے بیلاروس کے وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ آمد نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے استقبال کیا. بیلاروس کے صدر آج اسلام آباد پہنچیں گے. بیلاروس کا 78 رکنی وفد اتوار کو اسلام آباد پہنچ گیا. وفد میں 43 بڑی کاروباری شخصیات بھی شامل ہیں. پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیش نظر راولپنڈی اسلام آباد میں راستوں کی بندش کی صورتحال برقرار. راولپنڈی کو اسلام آباد سے ملانے والے راستے مسلسل دوسرے روز بھی بند. میٹرو بس سروس معطل ہے. جڑواں شہروں اور مری میں تمام تعلیمی ادارے بند ہیں. اسلام آباد میں ہزاروں سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں. جگہ جگہ کنٹینرز کی دیواریں ہیں. دیگر علاقوں سے اسلام آباد کی جانب آنے والے تمام راستوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے. راولپنڈی اسلام آباد میں موبائل فونز پر انٹرنیٹ ڈیٹا بند ہے یا محدود رفتار سے چل رہا ہے. لاہور شہر کے اندر ٹریفک مکمل طور پر معمول کے مطابق چل رہی ہے. البتہ لاہور سے دیگر شہروں کی طرف جانے والے راستے مکمل طور پر بند ہیں. سکھر ملتان موٹر وے بند ہونے سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے. گجرات میں دریائے چناب کا پل دونوں طرف کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا گیا. جی ٹی روڈ پر لالا موسا اور کھاریاں اور سرائے عالمگیر بھی کنٹینر سے بند ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج کی بجائے مسلح دہشت گردی کی کاوش ہے. غازی بروتھا، میاں والی، ہزارہ موٹر وے اور دیگر مقامات پر پولیس پوسٹ پر فائرنگ کی گئی. ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایچ او سمیت 20 سے زائد پولیس اہلکاروں کو حملوں میں زخمی ہونا افسوسناک ہے. مظاہرین کے پاس شارٹ مشین گن، آنسو گیس، چاقو، ماسک وغیرہ بھی دیکھے گئے ہیں. ایسا اسلحہ استعمال ہوا جو صرف پولیس کے پاس ہوتا ہے. پنجاب پولیس کو پہلے بھی تصادم سے بچنے کے لیے غیر مسلح رکھا گیا تھا، اب بھی غیر مسلح ہے. ایک صوبے کی پولیس کا دوسرے صوبے پر حملہ قومی یکجہتی کو پارا پارا کرنے کے مترادف ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات. بعد میں میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں. احتجاج کال آف والی بات نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال فائنل ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی ریلی کی قیادت بھی کر رہی ہیں اور انہوں نے خطاب بھی کیا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بشرا بی بی گھریلو خاتون ہے اور ان کا سیاست سے تعلق نہیں. کل بشرا بی بی بہت سارے لوگوں کے درمیان کنٹینر پر تھیں. یہ پتہ نہیں کون سی شریعت ہے. علیمہ باجی بشرا بی بی اور گنڈا پور سے لڑائی کے بعد غائب ہو گئیں. پورے پنجاب سے 80 افراد کو گرفتار کیا گیا. اس سے بڑی شرمندگی کوئی نہیں ہو سکتی کہ بانی پی ٹی آئی کی آخری کال پر 80 افراد ہی نکلے. پی ٹی آئی کے شوکت یوسف زئی نے کہا ہے کہ سیاسی ورکر تعداد پر یقین نہیں رکھتا، جوش و جذبے کی بنیاد پر کامیابی حاصل کی جاتی ہے. حکومت کا رویہ سیاسی نہیں. ملک کو جتنا نقصان پہنچے گا اس کی ذمہ دار نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہوگی. علیمہ خان ہمارے ساتھ نہیں ہے. پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا سے اسلام آباد احتجاج کے لیے آنے والا مرکزی قافلہ برہان انٹرچینج پہنچ گیا. پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے قافلے کی قیادت علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں. بشرا بی بی کی گاڑی ان کے پیچھے ہے.
PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात दर्ज, फैसलाबाद में 3, रावलपिंडी में 2, गुजरांवाला, सरगोदा, कसूर और खुशाब में एक एक मुकदमा दर्ज किया गया। बानी PTI बुशरा बीबी, अलीमा खान, उमर अयूब और अलियमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमा नामजद तमाम मुकदमात में सदाद दहशत गर्दी, पुरतशद्दुद एहतजाज से अवाम की जिंदगी खतरे में डालने, जलाओ घेराव और रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाने की दफात शामिल हैं। फैसलाबाद से मुकदमे में नामजद 47 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने CIA बिल्डिंग I-9 को सब जेल करार दे दिया। हालिया एहतजाज में गिरफ्तार अफराद को यहाँ रखा जाएगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के नोटिफिकेशन के मुताबिक CIA बिल्डिंग को आर्टिकल प्रिजनर्स एक्ट 1894 की सेक्शन 3 के तहत सब जेल करार दिया गया है। इस्लामाबाद इंतजामिया की दरख्वास्त पर सब जेल बनाने की मंजूरी वजारत कानून और पार्लिमानी अफेयर्स ने दी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। अब से कुछ देर पहले तक 100 इंडेक्स 576 इजाफे से 98,374 पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स 99,317 पॉइंट्स की सतह पर भी गया था। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के कयाम पर गौर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत इजलास में सीनियर जजेस, वजीर कानून आजम नजीर तारर, अटॉर्नी जनरल सेनेटर फारूक एच नायक और शेख आफ्ताब अहमद भी शरीक। मुकदमे के इंदराज से पहले FIA का 161 के नोटिस जारी करना खिलाफ कानून है। सहाफियों को इदारों की जानिब से हरासा किए जाने के केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। समाअत के दौरान प्रेस एसोसिएशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 60 के करीब सहाफियों को FIA ने नोटिस भेजे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सहाफियों को जारी करदा नोटिस खत्म हो चुके हैं, जिस पर मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सिर्फ कह देने से मसला खत्म नहीं होता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सहाफी वीलॉग करें लेकिन बात शाइस्तगी से करें। सहाफियों का पर्सनल होना नामुनासिब है। सहाफियों को ज़ाब्ते इखलाक बनाना होगा। केसेस की मजीद समाअत 10 रोज के लिए मुलतवी। पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर हुसैन शाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हिमायत का कड़वा घून जमहूरियत के लिए पिया है। नून लीग का साथ ना देते तो नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता, जिसका होना गैर यकीनी था। पीपल्स पार्टी के लिए जैसी नून लीग है वैसी ही तहरीक इंसाफ है। इलेक्शन के बाद PTI को हुकूमत साजी के लिए गैर मशरूत पेशकश की, जिसे मुस्तरद किया गया। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। सानेह में जहां बहक अफराद की तादाद 50 हो गई, जबकि कबाइल के दरमियान जारी ताज़ा झड़पों में मजीद 2 अफराद जान बहक और 19 जख्मी हो गए। 5 रोज के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में मजमूई तौर पर 88 अफराद जान बहक और 111 अफराद जख्मी हैं। मुल्तान के निश्तर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट से मरीजों में एड्स मुंतकली पर पुलिस तहकीकात मुकम्मल। डायलिसिस मरीजों के कई माह तक टेस्ट नहीं किए गए। 11 अक्टूबर को पहला केस रिपोर्ट होने के बाद सीनियर डॉक्टर्स ने रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया। लैब से जाली और बोगस रिपोर्ट्स को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। पुलिस की आला तहकीकाती कमेटी ने VC निश्तर यूनिवर्सिटी डॉक्टर महनाज खाकवानी, 10 डॉक्टर्स, 1 नर्स और 1 रिकॉर्ड कीपर के बयानात लिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक वार्ड के तमाम सीनियर डॉक्टर्स और MS रिकॉर्ड टेम्परिंग का हिस्सा थे। एड्स मुंतकली पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने CPO मुल्तान को 3 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की थी। डायलिसिस यूनिट में जेर इलाज 25 मरीजों में एड्स वायरस की मुंतकली की तस्दीक हो चुकी है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि अवाम ने 24 नवंबर की PTI की कॉल मुस्तरद कर दी है। सिंध से कोई रजाकाराना तौर पर इस एहतजाज के लिए नहीं निकला। जेल में बैठा शख्स अवाम की जिंदगी अजीरन कर रहा है। इनका एजेंडा 1 पॉइंट है कि इन्हें जेल से निकाला जाए। KP हुकूमत सरकारी वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल कर रही है। शर्जील मेमन ने सिंध में नौजवानों के लिए टैक्सी प्रोग्राम का ऐलान किया। कहा कि इसके लिए कुछ पैसे बैंक, कुछ सिंध हुकूमत देगी और कुछ पैसे देकर नौजवान टैक्सी का मालिक बन जाएगा। वजीर आला सिंध की मेयर कराची को शाह फैसल से एयरपोर्ट तक सड़क ठीक करने की हिदायत।
वजीर बल्दियात को करंगी कॉजवे पर पुल का काम तेज करने का हुक्म। मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास में करीमाबाद अंडरपास, मलीर एक्सप्रेस वे और करंगी कॉजवे पुल पर काम का जायजा। वजीर आला ने कहा वजीर बल्दियात खुद प्रोजेक्ट की निगरानी करें, करीमाबाद अंडरपास जल्द मुकम्मल करवाएं। कोयटा से 10 साल के मुसव्विर खान की अगवा के खिलाफ बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल। चमन, कोहलू, पेशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, योब, जियारत, कोहलू, खुजदार समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारे बंद। आज होने वाला पर्चा भी मनसूख। कोयटा कराची कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल है। N25 कोयटा से आने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन भी बंद। कोयटा में बच्चे के अहल खाना, सियासी जमातों के कारकुन और ताजिर बिरादरी के नुमाइंदों का धरना जारी। 10 साल के मुसव्विर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा कर लिया गया था। टांक में मुसल्ला अफराद का पुलिस चौकी पर हमला, 5 पुलिस एहलकार और 2 ड्राइवर जख्मी। पुलिस के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। डीआई खान में 8 महीने की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। 24 घंटों में मुल्क भर से पोलियो के 4 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल मुतासर बच्चों की तादाद 56 हो गई। सामने आने वाले नए केसेस में से 2 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और 2 का बलोचिस्तान से। हथनी मधुबाला को कल कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक हथनी मधुबाला को बेहोशी की हालत में कंटेनर में मुंतकिल किया जाएगा। मुंतकिली के लिए रूट क्लियर कराया जाएगा। सफारी पार्क में मधुबाला के लिए खुसूसी इंक्लोजर और स्विमिंग पूल बनाया गया है। 52% पाकिस्तानी पसंद की शादी के मुखालिफ। कहा कि पसंद की शादी की बिल्कुल हिमायत नहीं करते। 39% की हिमायत। पसंद की शादी पर कोई एतराज न होने का कहा। गैलत पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। हैरान कुन तौर पर पसंद की शादी की सबसे ज्यादा मुखालिफत शहरी आबादी की जानिब से की गई। 58% ने एतराज किया, जबकि दही आबादी में मुखालिफत की शरह 49% देखी गई। दुनिया भर में आज खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का दिन। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। कहा खवातीन को तालीम और हुनर की फराहमी और माली खुदमुख्तारी यकीनी बनाना होगी। खवातीन के हुकूक से मुतालिक शऊर बेदार करना नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा खवातीन उनकी रेड लाइन है। तशद्दुद या जुल्म कतन बर्दाश्त नहीं। खवातीन पर तशद्दुद करने वाले बुज़दिल और मुजरिम हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियार बनाने के लिए अहम इक़दामात किए हैं। मुल्की ऐवानों में पीपल्स पार्टी ने खवातीन को बड़ी तादाद में नुमाइंदगी दी है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने कहा खवातीन के खिलाफ तशद्दुद समाजी मसला है। पाकिस्तानियों से अपील है कि औरतों पर तशद्दुद के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज उठाएं। सुरीली आवाज, गीत यादगार। चाहने वाले गुलकार सलीम रजा की बरसी नहीं भूले।